this valuable press conference today to highlight a very critical issue with the medical education for the students in India. There are about 24 lakh students who write NEET examination, while around 13-14 lakhs students they pass out of NEET. But the number of seats available in all the country, including the government and private colleges, is not more than 1,20,000. To address this issue, either we have to have more colleges and universities so that we can include those students, few lakhs of students, or find some alternative for them. So we have found a very interesting research. For 3 years we researched. I am the founder and group CEO of Gvantage Group. We have partnered with world's one of the largest hospital group called Apollo. Apollo Hospitals Group has one healthcare and medical skill development division called Apollo MedSkills Limited, which partners for healthcare and medical education with National Skill Development Corporation, Government of India. And they have trained about more than 500,000 medical and healthcare professionals in last 1 decade. So we partnered with Apollo MedSkills, researched and found the problem, the pain points and also the solution. The problem was 24 lakh students writing the NEET examination, 12 to 14 lakhs getting passed, and only 1,20,000 seats. So a gap of more than 10 lakh students who are not able to become the doctor, which was their dream. Most of the students in the last 20 years, we have seen that they have been going to other countries to pursue their education, majorly in Ukraine, Russia, China, Philippines and other countries. But they were facing 5 to 6 major challenges as per our research. Those students who are going from India to study abroad their medicine, they were being taught by local professors of that country who cannot speak proper English. The syllabus of that country was adopted, which is not compatible with the syllabus of National Medical Commission of India. So the net result was, when the students used to come back from those countries, they had to write an exam called Foreign Medical Graduate Exam. And there were pathetic results. The students who are studying abroad, when they come back and write the FMG exams, they were not able to pass that exam. So net result was, students were spending 5 to 6 years of their career, of their precious time of their life, of their youth, spending lakhs of rupees, being away from the parents, but still when they come back they are not doctors. तो ये एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम है सारी कंट्री का, न सिर्फ कश्मीर का बल्कि किसी अदर स्टेट का, ये सारी इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन के लिए. जो लड़के लड़कियां नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, जो करीब 24 लाख के करीब बच्चे जो एग्ज़ाम अपीयर होते हैं नीट का, उसमें से 12 से 14 लाख बच्चे पास होते हैं. लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस मिला के सारे इंडिया में 1,08,500 करीब सीट हैं. बकिया जो 10-12 लाख स्टूडेंट्स जो नीट पास भी हो सकते हैं, जिन्होंने नीट पास भी किया है, उनके पास कोई सीट अवेलेबल नहीं है. तो दूसरा ऑप्शन उनका ये था कि इंडिया के बाहर जाके MBBS करें. तो हमने रिसर्च की. मैं जीवांटेज ग्रुप का फाउंडर और ग्रुप CEO हूँ. जीवांटेज ग्रुप ने अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप के एक हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट की डिवीज़न है अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड. अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड पिछले 10 साल के अंदर करीबन 5 लाख से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करके जॉब दिलवाया है इंडिया में और बैरून मुल्क. अपोलो मेडस्किल्स चूँकि मेडिकल और हेल्थ केयर के एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में है, हमने उनके साथ शिराकतदारी की और हम लोग कई ममालिक जाके जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं MBBS, वहाँ का रिसर्च किया. और उस रिसर्च का नतीजा ये निकला कि लाखों बच्चे जो यूक्रेन, रशिया, चाइना, फिलीपींस, ईरान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक को जाके MBBS पढ़ते हैं, वहाँ का सबसे बड़े 4-5 हमने
प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन ममालिक में जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, तो वहाँ का लोकल सिलेबस पढ़ाया जा रहा बच्चों को। वो सिलेबस हमारे नेशनल मेडिकल कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंपैटिबल नहीं है। दूसरा, प्रोफेसर जो वहाँ के हैं वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं हैं, तो हमारे बच्चों को उनके लेसन समझ में नहीं आ रहे। तीसरा मेजर प्रॉब्लम उनका रहने और खाने का। इंडियन बच्चे वहाँ पे जब जाते हैं तो उनके लिए वो इंडियन मसाले या हमारे जो खाने हैं वो मैसर नहीं हुआ, तो उनके रहने खाने का प्रॉब्लम, सिलेबस का, लैंग्वेज का। जब ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ वो 5-6 साल गुजार के वापस आते हैं तो उनको एक एग्ज़ाम लिखना होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, FMG। ये पाया गया पिछले 20 साल में कि तकरीबन बच्चे जो पढ़ के आते हैं बैरून ममालिक से, जब वो इंडिया आके वो एग्ज़ाम लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो नतीजा ये है कि ज़िंदगी के, जवानी के उनके 5-6 अहम साल लाखों रुपए का खर्च करने के बावजूद वो लाइसेंस्ड क्वालिफाइड डॉक्टर इंडिया में नहीं बन सकते। इसके लिए हम लोगों ने जीवांटेज ग्रुप और अपोलो मेडस्किल्स ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमने उज़्बेकिस्तान में बुखारा शहर के अंदर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की। अभी जीवांटेज उनके सारे ये प्रॉब्लम्स, उनके वीज़ा, रहना, खाना, उनके पुलिस रजिस्ट्रेशंस, उनका सारा गाइडेंस का काम जीवांटेज ग्रुप कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जीवांटेज ग्रुप का है। सारी एकेडमिक डिलीवरी अपोलो मेडस्किल्स की है, यानी प्रोफेसर, सिलेबस, करिकुलम, डीन, रेक्टर, उनके एग्जामिनेशंस, उनके सारी एकेडमिक डिलीवरी की जिम्मेदारी अपोलो मेडस्किल्स की है। तो अभी यूँ समझें आप कि इंडियन बच्चे इंडिया के बाहर रह के मिनी इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स इंडियन, सिलेबस इंडियन, जो NMC के कंपैटिबल सिलेबस है, क्योंकि अपोलो ग्रुप के 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो वन ऑफ द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से हैं। एक जुबली हिल्स हैदराबाद तेलंगाना में है, दूसरा चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। तो ये सारी जो बैकअप है हमको, प्रोफेसर से लेके सिलेबस तक, ये सारा अपोलो मेडस्किल्स की तरफ से है। और सारा मैनेजमेंट और जनरल उनका रहना, खाना, वीज़ा, ये सारी चीज़ें जीवांटेज कर रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि कम से कम पैसों में, यहाँ पे अगर डोनेशन वाली सीट है तो करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपये खर्चा करना पड़ रहा है। तो हमारे पास कोई डोनेशन नहीं है और सारा 6 साल का उनका पढ़ाई, रहना, खाना सब मिला के 40 लाख से ज़्यादा नहीं है 6 साल का। तो एक तो हम अफोर्डेबल एजुकेशन, दूसरा क्वालिटी, तीसरा NMC से कंपैटिबल सिलेबस, चौथा इंडियन प्रोफेसर्स और करिकुलम इंडियन, खाना भी इंडियन और प्रोफेसर्स भी इंडियन है। तो ये एक यूनिक प्रोग्राम है जो तारीख़ हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा किया जा रहा, जहाँ पे अपोलो जैसा एक रिनाउंड ब्रांड इंडियन बच्चों के लिए मेडिकल एजुकेशन के अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है। आई थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर किसी कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज। How many seats are available in the university per year? Well, one very amazing question he has asked. There is a limitation of seats in India. 150 स्टूडेंट्स का कोटा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपके पास 650 बेड का प्रैक्टिस हॉस्पिटल हो। और इंडिया में जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कोई एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसके 150 से ज़्यादा सीट है अभी। लेकिन उज़्बेकिस्तान में, जहाँ बुखारा में हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वी डू नॉट हैव द लिमिटेशन ऑफ सीट्स, बट उनके थोड़े से नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स क्या हैं कि आपकी क्लासरूम की कैपेसिटी, लाइब्रेरी की कैपेसिटी, प्रैक्टिस हॉस्पिटल के बेड्स की कैपेसिटी इन प्रोपोर्शन हैज़ टू बी मेंटेन। तो अभी फिलवक्त हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन 2000 से 2500 बच्चों को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं।